Good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. I hope you all are fine, healthy and full of positive energy because this is the testing time and this time need more positive energy to fight with COVID-19, to fight with negative thoughts. So think positive, be positive and positive things will happen. So now let's start the lecture. In our last lecture, we complete the revision work of chapter 3, the story of Indian democracy. And I am very happy to see this that you all are doing your homework too. So, clap for you. So today we are going to revise chapter 8, social movement. In this chapter, we will discuss the topics: what is social movement, its features, its types and difference between social change and social movement. Students, you know many students and office workers who are going to work only 5 or 6 days and rest on the weekends, Saturday or Sunday, है ना? Do you realize that these holidays is the outcome of a long struggle by workers, or that the work should not exceed 8 hours, or that man and woman should be paid equally and workers are entitled to social security and pension? These and many other rights were gained through social movements. Social movements have shaped the world we live in and continue to do so. तो जो हम आज वर्ल्ड देख रहे हैं, है ना, वो बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स जिसे हम कह सकते हैं उसका नतीजा है. और जो हम आज फ्री इंडिया में हम रह रहे हैं ना, वो भी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, जो फ्रीडम मूवमेंट था, उसी की वजह से रह रहे हैं. वो भी एक बड़े स्तर का सोशल मूवमेंट ही था, है ना. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज सोशल मूवमेंट. Where a group of people come together in order to bring about change in society in regard to certain social issues with the aim of changing people's perspectives about the aspect. वो क्या है? Where is the group of people? क्या है? सबसे पहले एक ग्रुप है पीपल का. कम टूगेदर, साथ आए हैं, किस लिए? इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी. सोसाइटी में कुछ चेंज लाने के लिए जो कि उन्हें लग रहा है कि आने चाहिए, है ना. इन रिगार्ड टू सर्टेन सोशल इश्यूज विद द एम ऑफ चेंजिंग पीपल पर्सपेक्टिव. उन्हें चेंज लाना है कुछ सोशल इश्यूज में जो सोसाइटी के लिए उनको ठीक नहीं लग रहे हैं, और इसके लिए उनका क्या एम है कि लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज करना. तो क्या मीनिंग हुआ इसका सोशल मूवमेंट का? कि लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो साथ आता है किस चीज के लिए? सोसाइटी को चेंज करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर इश्यूज को लेकर, और लोगों की विचारधारा को चेंज करने के लिए. उन इश्यूज को लेकर जो लोगों की विचारधारा है उसको चेंज करने के लिए कुछ लोग साथ आते हैं और एक सोशल मूवमेंट करते हैं. इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ कि अन्ना हजारे जी ने जब लोकपाल बिल के लिए एक मूवमेंट किया था, तो आप उसको इसके पर्सपेक्टिव में रख के अच्छे से समझ सकते हैं, है ना. Thus, social movement is the effort by an association to bring about a change in the society. Social movement may be numerous of kinds such as religious movements, reform movements or revolutionary movements. Now the features of social movement. The first significant feature of social movement is sustained collective action. Such action is often directed against the state and takes the form of demanding changes in state policy or practice. Spontaneous, disorganized protest cannot be called a social movement.
किसी भी सोशल मूवमेंट को कलेक्टिवली एक्शन लेना बहुत जरूरी है, तभी वो किसी भी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट अपनी डिमांड रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी कहते हैं ना, कोई भी अकेला जना तो बाढ़ नहीं फोड़ सकता, ना ही डिसऑर्गेनाइज तरीके से जो सोशल मूवमेंट है वो वर्क करते हैं। तो एक किसी भी सोशल मूवमेंट का ऑर्गेनाइज्ड होना या फिर हम कह सकते हैं कलेक्टिव एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये सोशल मूवमेंट की एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फीचर है ना। द नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Social movement work as an organized way. And what is organization? A group of people who form together in order to achieve a particular aim. In collective action must be marked by some degree of organization. This organization may include a leadership and a structure that defines how members relate to each other, make decisions and carry them out. Every social movement must have a good leader. We can give a good example from our own country's freedom movement. M.K. Gandhi was a great leader, है ना। और अगर एक ग्रेट लीडर हमारे पास हो, सोशल मूवमेंट को लीड कर रहा है, तो क्या पता चलता है इससे? वो क्या करता है, अपने जो मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करता है, उनको जो डिसीजन मेकिंग लेता है ना, और जो डिसीजन के द्वारा लिए जाते हैं उनको जो और मेंबर्स हैं उनको वो कैरी करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सोशल मूवमेंट तभी वर्क कर पाता है जब उससे कोई अच्छा लीडर जुड़ा हो, एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी जुड़ी हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियोलॉजीज। Those participating in a social movement also have shared objectives and ideologies. जो लोग एक साथ आए हैं, एक साथ मिले हैं, क्यों मिले हैं? क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, उनके उद्देश्य क्या हैं, सेम हैं। इसीलिए तो लोग एक साथ आते हैं। जिनकी विचारधारा सेम होती है, जिनके उद्देश्य सेम होते हैं, वही तो एक दूसरे एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, है ना। अ सोशल मूवमेंट हैज अ जर्नल ओरिएंटेशन और वे ऑफ अप्रोचिंग टू ब्रिंग अबाउट चेंज। ये एक जर्नल अप्रोच है। जर्नल जो लोग हैं जिनका एक सेम एम है, वो ही तो लोग एक साथ मिलकर वो चेंज लाना चाहते हैं, जो कि वो जिनको सबको लगता है कि हाँ ये चेंज सोसाइटी में होना चाहिए, है ना। सो इट नीडेड सोशल मूवमेंट कैन नॉट कीप इटसेल्फ अलाइव अनलेस इट डेवलप्स इट्स आइडियोलॉजिकल फ्रेम एंड आइडेंटिटी। एंड आइडियोलॉजी ऑफ एन सोशल मूवमेंट रिलाइज ऑन सेट्स अप the idea that explain and justify its objectives and methods. So ideology is very important in any social movement. Okay, next is distinct modes of protest. Social movement has different modes of protest like candle march, black clothes, etc. जब कोई भी किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? कैंडल मार्च दिखाई जाती है, ब्लैक क्लोथ्स के थ्रू या ब्लैक सिर पर ब्लैक पट्टी बांध देते हैं, उसके थ्रू किसी भी चीज का प्रोटेस्ट किया जाता है ना। या वो बना लिए जाते हैं, बैनर टाइप बना लिए जाते हैं। जब हमारे फ्रीडम मूवमेंट में जब साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए, तो उन्होंने बड़े बड़े कमीशन वो बनाए हुए थे बैनर्स, और उनपे लिखा हुआ था गो साइमन गो, है ना। तो इस तरीके से बैनर्स बना लिए जाते हैं। या फिर कोई भी अब आजकल वो फ्लावर देकर अपना जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट दिखाया जाता है ना। तो ये कुछ मोड्स होते हैं प्रोटेस्ट शो करने के अपने, है ना। नेक्स्ट इज डिफाइंड स्ट्रक्चर। एवरी सोशल मूवमेंट हैज अ प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि हम किस वे में साथ साथ जाना है। तो एवरी मूवमेंट हैज अ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, है ना।
नेक्स्ट इज एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन सोशल इश्यूज। सभी का जो इतने भी लोग साथ आए हैं सबका एक ही एम होता है कि कुछ भी पर्टिकुलर जो उनके इश्यूज हैं उनको उनमें चेंज होना चाहिए। सोशल मूवमेंट्स कैन नॉट चेंज सोसाइटी इजीली चेंज नहीं कर सकते कोई भी। अच्छा, किसी भी चीज को इजीली कि आप अपनी मम्मी पापा की जो आपको कोई उनके बात है अगर आप उन्हें उसने मनाना चाहते हैं तो क्या वो इजीली मान जाते हैं? कोई भी चीज हो वो इजीली नहीं हो पाती, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सिंस इट गोज अगेंस्ट बोथ एनरेज्ड इंटरेस्ट and values, there is a bound to be opposition and resistance, but over a period of time change to take place। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ समाज में ऐसी कल्चर से रिलेटेड, कुछ रिलीजन से रिलेटेड ऐसी चीजें होती हैं जिनको अगर लोग चेंज करना चाहते हैं तो उनके विरुद्ध काउंटर अटैक्स होते हैं, है ना। जैसे कि अब हम 3 तलाक वाला ही अगर हम केस देखें तो उसमें कुछ लोग उसके साथ थे, कुछ अपोजिशन में भी थे कि भाई ये नहीं है, ये तो ठीक है, ये हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से कुछ लोग प्रोटेस्ट में भी होते हैं, कुछ काउंटर में भी होते हैं। तो लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम जब हम उन चीजों को लेकर साथ चलते हैं और फिर बताते हैं कि उसके मेरिट्स क्या है, उसकी डिमेरिट्स क्या है, तो टाइम लगता है। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम चेंज टू टेक प्लेस, चेंज होते हैं, टाइम लगता है। जैसे सती प्रथा थी, गलत थी लेकिन लोगों के कल्चर से जुड़ी हुई थी, तो लोगों ने उसके प्रोटेस्ट में भी थे और लोग उसके साथ भी थे कि नहीं ये हमारे कल्चर से जुड़ी हुई मामला है, तो लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया गया ना। इसी तरीके से हर चीज के 2 पहलू होते हैं, है ना। नाउ द काउंटर मूवमेंट्स। काउंटर मूवमेंट्स मैंने अभी आपको बताया भी है ना कि काउंटर मूवमेंट्स अराइज इन डिफेंस टू स्टेटस को। दीज आर मैनी इंस्टेंस ऑफ काउंटर मूवमेंट्स। जब किसी भी सोसाइटी में किसी भी चीज को लेकर चेंज करने के लिए लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, किसी भी को कह सकते हैं, कोई भी कुरीति हो सकती है समाज से जुड़ी हुई। जैसे कि हम सती प्रथा को ही लेकर फिर आगे चलते हैं कि राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने कहा कि ये कैसे ही मतलब वो है जो ये किस तरह का कल्चर है कि भाई जो व्यक्ति मर चुका है उसके साथ ही जो जिंदा व्यक्ति है उसको भी मार दिया जाए, है ना। कि जो व्यक्ति जिंदा है उसको तो जीवित रहने का अधिकार है ना। तो सती प्रथा में क्या था कि जो पति के मरने के बाद जो पत्नी होती थी उसको भी अपने हस्बैंड की चिता के साथ ही जलना होता था। तो ये सती प्रथा थी, है ना। तो राजा राम मोहन राय ने इसको कहा कि इसको ये समाज से खत्म होने चाहिए। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो जुड़ गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसको डिफेंस कर रहे थे कि नहीं ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है, आप इसमें तो मतलब इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। तो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इसके अगेंस्ट जो और लोग थे उन्होंने धर्म समाज की स्थापना की। जो लोग सती प्रथा के अगेंस्ट थे वो ब्रह्म समाज में थे और जो लोग सती प्रथा के साथ थे वो धर्म समाज में थे। तो ये इस तरीके से कोई भी मूवमेंट जब समाज में चलता है, जब किसी भी चीज को चेंज करने की कोशिश की जाती है तो उसका डिफेंस भी होता है और उसका प्रोटेस्ट भी होता है। लोग काउंटर अटैक करते हैं, लोग काउंटर मूवमेंट में भी आते हैं, है ना। दोनों ही चीजें होती हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। फर्स्ट इज रिडम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी। Movement is formed to reduce action done in the past. It lies to change the thinking of the people. Sometimes it's called religious movement. It focused on a specific segment of the population and their goal is to provoke inner change or spiritual growth in individuals. इस मूवमेंट में अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना और गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, केरल के इजवाहा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी जो उनकी सामाजिक प्रथाएं थी उनको चेंज किया। ठीक है। नेक्स्ट इज रिफॉर्मिस्ट is the movement where the reformers try to change the mindset of the people regarding
अ पर्टिकुलर इशू, किसी भी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर जो सोसाइटी के लिए या फिर सोसाइटी में किसी एक पर्टिकुलर कह सकते कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है, उसको सोसाइटी से इरेडिकेट करना ही इस जो मूवमेंट है उसका लक्ष्य होता है। ये इसी टाइप के मूवमेंट होते हैं, जैसे कि जो वुमेन्स को लेकर जितने भी मूवमेंट किए जाते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो मूवमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं दलित को लेकर, या फिर कोई भी ऐसी सामाजिक प्रथाएं जो कि समाज के लिए यूजफुल नहीं है लेकिन चल रही हैं, उनको जो या फिर सती प्रथा, दहेज प्रथा, इन सबको हटाने का जो जितने भी सारे मूवमेंट्स हैं वो इसी के अंडर आते हैं। ठीक है। और थर्ड इज revolutionary movement is a movement where radical or violent methods are used to bring about change in society, could use weapons. For example, Subhash Chandra Bose, Indian National Army, Bhagat Singh. These movements are deeply dissatisfied with the social order and work for radical change. For example, ये सुभाष चंद्र बोस जी की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, वो गांधी जी जो थे किसके पुजारी थे? अहिंसा के। और उन जो जी भगत सिंह थे या फिर जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनको लगता था जो हमारा फ्रीडम का मूवमेंट था, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो था हमारा, उसमें गांधी जी अहिंसा का साथ देते थे। उनको लगता था कि भाई अहिंसा के बलबूते पे हम फ्रीडम ले सकते हैं। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, और भी हमारे यहाँ दो तरीके के ग्रुप थे। एक नरम ग्रुप था कहा जाता था उस टाइम पर, एक गरम ग्रुप। जो नरम वाला था वो गांधी जी के साथ लोग थे, और जो गरम थे वो सबको उनको कहा जाता था वो भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, जो इस तरीके के जो ये युवा नेता थे, जो ये सोचते थे कि जो जैसा हमारे साथ अंग्रेज कर रहे हैं हम भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। तो इस ग्रुप में वो लोग आते थे। तो वो किस चीज का, ये लोग वेपन्स का भी यूज करते थे, जबकि गांधी जी अहिंसा का साथ देते थे कि वो हिंसा के पूर्णतः विरुद्ध थे। ठीक है। तो इसी तरीके के जो मूवमेंट्स होते हैं वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स कहलाए जाते हैं, जिनमें रेवोल्यूशन क्रांति होती है ना। अंडरस्टैंड? नाउ द डिफरेंस बिटवीन सोशल चेंज एंड मूवमेंट। सोशल चेंज ongoing process. Social change is an ongoing process, a natural process also. You can see changes each and everything in your lifestyle, family types, technology, even food also, है ना, चलती रहती है, नेचुरल प्रोसेस है। जैसी हमारी सोसाइटी पहले थी, क्या आज आपको वैसी लगती है? चेंज है ना, बहुत चेंज है ना, बहुत चेंज आ गया, बहुत सारी चीजों। लेकिन क्या वो चेंज आपको पता चल रहा है? जब से आप छोटे थे, बड़े हो गए, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, है ना, लेकिन वो चेंज हमें पता नहीं चलता। ऑन गोइंग प्रोसेस है, सोसाइटी में चेंज चलता रहता है ना। इन सोशल मूवमेंट कीप चेंजिंग, नॉट ऑन गोइंग। इट इज नॉट एन ऑन गोइंग प्रोसेस। सोशल चेंज इज नॉट एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, कुछ चीजें, कुछ समाज में कुछ ऐसी जो इश्यूज हैं उनको चेंज करना पड़ता है ना। जैसे कि फ्रीडम मूवमेंट को ही आप ले सकते हो कि क्या अगर ये जो फ्रीडम मूवमेंट है, क्या अगर वो नहीं होता तो क्या अंग्रेज हमारे इंडिया से चले जाते? नहीं जाते, वो भी ऐसे ही रहते, हम लोग भी ऐसे रहते, है ना। लेकिन वो उसके लिए मूवमेंट करना पड़ा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। और लोग इतने, वैसे तो खुद ही इतने ज्यादा प्रताड़ित हो चुके थे कि उनके अंदर भी ये था कि हमको फ्रीडम चाहिए, है ना। तो वो चेंज लाना पड़ा, वो अपने आप से नहीं आ गया था। फ्रीडम हमें ऐसे ही बहुत आसानी से नहीं मिल गई है, इसके लिए बहुत पापड़ बेल, बहुत सेक्रीफाइसेस किए गए हैं, उसके बाद हमें फ्रीडम मिली है ना। सेकेंड इज इफेक्ट इको सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। जो सोशल चेंज है वो हमारे सभी चीजों को इफेक्ट करता है, इकोनॉमी को भी, सोशल लाइफ को भी, पॉलिटिकल लाइफ को भी, है ना, सबको प्रभावित करता है। और हमारी सोसाइटी में जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं सबको ही सोशल चेंज प्रभावित करता है। और सोशल मूवमेंट इफेक्ट्स अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी।
सोशल मूवमेंट किसी एक सर्टेन एस्पेक्ट को लेकर किए जाते हैं, है ना। जैसे जो लोकपाल बिल वाला मूवमेंट अन्ना हजारे जी ने किया था, वो क्या था, वो भ्रष्टाचार को लेकर था। तो वो उसी चीज को वहां उन्हें जो पॉलिटिकल वो थे उनको ही प्रभावित किया, है ना। वो उसमें मतलब इतना ज्यादा और किसी चीज पे इतना प्रभाव नहीं पड़ा। एक सर्टेन एस्पेक्ट होते हैं, उनको ही लेकर सोशल जो मूवमेंट है वो किए जाते हैं और वो उन्हीं को ज्यादातर प्रभावित करते हैं, है ना। इसके अगर हम डीप रूट में जाएं तो चीजें होती हैं, सोशली लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन जो हम ये नहीं कह सकते बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। ये सोशल चेंज से बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो ये है था सोशल चेंज की। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, नेचुरल है, लेकिन जो सोशल मूवमेंट होते हैं वो ऑनगोइंग नहीं होते, नेचुरल नहीं होते, उन्हें लाना पड़ता है। चीजें जो खराब चीजें होती हैं उनको निकालना पड़ता है, वो अपने आप नहीं निकलती, है ना। नाउ द सोशियोलॉजी एंड सोशल मूवमेंट। अब हम जो सोशल मूवमेंट्स को सोशियोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है इसका कि हम सोशियोलॉजी में सोशल मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि सोशियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी की स्टडी करती है। सोसाइटी की स्टडी हम किसके थ्रू, कौन से सब्जेक्ट में करते हैं, सोशियोलॉजी में करते हैं। और सोशल मूवमेंट किसको कहाँ होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, सोसाइटी की चीजों को चेंज करने के लिए होते हैं। इसलिए हम सोशियोलॉजी में सोशल मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। और इन एन कंट्री सोशल मूवमेंट्स एम टू चेंजिंग सम एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में जब सोशल मूवमेंट्स होते हैं तो वो किस सोसाइटी के कुछ एस्पेक्ट्स में चेंज लेकर आते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगेंस्ट मोनार्की व्हेन पीपल वर सफरिंग, डिप्रेस्ड एंड वांटेड फ्रीडम एंड इक्वालिटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन किसके अगेंस्ट था, वहां का जो राजतंत्र था, मोनार्की सिस्टम जो फ्रांस में उस टाइम था, उसके अगेंस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। क्यों, क्योंकि लोग वहां के शासन प्रणाली से इतने ज्यादा सफर हो चुके थे, इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे कि वहां पे किस चीज की मांग होने लगी, फ्रीडम की मांग होने लगी, इक्वालिटी की मांग होने लगी। क्योंकि वहां पे पुअर ही थे और रिच जो लोग थे उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जो साधारण लोग थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, तो उनको फ्रीडम चाहिए थी उन सब चीजों से, उस सफरिंग से, उस डिप्रेशन से उनको फ्रीडम चाहिए होती थी। तो उसका रिजल्ट क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट ब्रिटेन, प्रोटेस्ट बाय कॉमन मैन, पेड लो वेजेस एंड ट्रीटेड बैडली। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट किसका नतीजा था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी में, उसके बाद एक नया कल्चर आया जिसमें फैक्ट्रीज थी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई, कंपनीज आ गई, मशीनरी का जो युग था वो शुरू हुआ। तो मिल मालिक हो गए, है ना। लोग जो ग्रामीण इलाके से थे वो ग्रामीण इलाके से बाहर आके जो फैक्ट्रीज थी उनमें वर्क करने लगे, है ना। और क्या चीज बन गई, वर्कर और मिल मालिक, है ना। तो जो उस टाइम पे जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर थे उनको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, जो उनको मतलब जो पैसे दिए जाते थे, जो उनका वेजेस थे वो बहुत ज्यादा लो होते थे। जितना उनसे काम लिया जाता था अकॉर्डिंगली वेजेस नहीं दिए जाते थे, और वर्किंग आवर भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। मैंने शुरू में आपको बताया कि ये वर्किंग आवर जो कम हुए हैं, या फिर आप ये जो छुट्टियां हैं जो जिन्हें हम वीकेंड्स अब कहने लगे हैं वो हो गई हैं, तो वो भी ये जो हमें सब कुछ मिला है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल का नतीजा हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सोशल मूवमेंट के थ्रू ये सब जो हमें चीजें मिली हैं उसके ही थ्रू मिली हैं। और आपने मार्क्स को पढ़ा है ना, मार्क्स ने बताया था कि दो बुर्जुआज और कौन थे, वर्कर्स जो थे, उनमें आपस में क्या हुआ था कि जो फैक्ट्रीज के मालिक अपने ये सोचते थे भाई हमने पैसा लगाया, और जो वर्कर थे वो जब अगर वर्कर वर्क नहीं करेंगे तो फैक्ट्री मालिक का पैसा लगाना क्या सफल हो पाएगा। जो इसीलिए जो अब जो पॉलिसीज होने लगी हैं, जो इनको लेकर जो ये वर्कर्स हैं, ये उसी वजह से उन्हीं स्ट्रगल्स का नतीजा है जो अब इनको मिल रहा है। उसका हम कह सकते हैं उसका फल है जो अब इन लोगों को, जो आगे आने वाले लोग हैं, उनको मिल रहा है ना।
According to Emile Durkheim, social movement can lead disintegration disorder of society. Society is more important than individual. इमाइल दुर्खाइम ने भी कहा है कि जो किसको वो करता है सोशल मूवमेंट, जो सोसाइटी में डिसऑर्डर फैला हुआ था, जो एक विकार कह सकते हैं हम, विघटन और विकार फैला हुआ है, उसको वो करता है सोशल मूवमेंट के थ्रू, उनको हटाने का प्रयास किया जाता है। और सोसाइटी किसके लिए बनी हुई है? सोसाइटी लोगों को मिला के बनी हुई है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि सोसाइटी उसे ही कह सकते हैं जो कहते हैं ना कि मैं कई बार और पेज ने भी कहा, सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, है ना। तो लेकिन इंडिविजुअल इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। सोसाइटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति जरूरी नहीं है, सोसाइटी ज्यादा जरूरी है ना। नेक्स्ट इज सोशल मूवमेंट्स यूजुअली एम एट improving the life of depressed class and sociology is the study of society। और social movements क्या करते हैं, क्या एम है उनका एम ये है कि उन लोगों को इम्प्रूव करना जो कि डिप्रेस्ड हैं। जैसे कि दलित मूवमेंट हो गया, वो लोग काफी डिप्राइव्ड, मतलब पास्ट में वो लोग काफी डिप्राइव थे, है ना। तो इनको उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना, या जैसे वुमन थी, उन लोगों को काफी पहले इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिली हुई थी जैसे कि अभी। और काफी जो हमारे यहाँ स्टेट्स हैं उनमें तो अभी भी ऐसा है जहाँ पे उनको थोड़े कम आंका जाता है ना। तो इन सब चीजों को लेके या कुछ सोसाइटी में कुछ इम्प्रूवमेंट जो होने चाहिए, कुछ चेंजेस जो होने चाहिए, सोशल मूवमेंट्स उन चीजों को लेकर किए जाते हैं, है ना। और हम जो सोशल मूवमेंट जो एक टॉपिक है उसको सोशियोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सोसाइटी की समस्याओं का, सोसाइटी में होने वाले चेंजेस का, सोसाइटी में होने वाले विघटन का, सोसाइटी में होने वाली चीजों का अध्ययन करते हैं, है ना। इसीलिए हम सोशियोलॉजी में सोशल मूवमेंट को पढ़ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी और सोशल मूवमेंट्स इंटर रिलेटेड इसलिए हैं, ठीक है ना। समझ आ गया? वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। So students, after revise these topics, I find out some questions for you. The question number 1 is, dash are a type of collective behavior: crowds, social movements, fads, all of above। आंसर इज सोशल मूवमेंट्स, क्योंकि हमें कलेक्टिव बिहेवियर, कलेक्टिवनेस की जरूरत कहाँ होती है? सोशल मूवमेंट में तो होती है ना। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not correctly matched? ब्राह्मण समाज, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट; प्रार्थना समाज, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट; अलीगढ़ मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट; आर्य समाज, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। तो इसमें जो है ये कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो आंसर इज D, Arya Samaj is not a reformist movement, it is a revivalist movement. Okay. Number 3, a social movement is defined as a large group of people who are organized to program or resist some social change. B, an individual who is against the government. C, a group of people who are against of a political party. तो answer is A large group of people who are organized to promote or resist some social changes. Question number 4, social movements occur on a local level, a regional level, global level, or all of above. तो आंसर इज D, all of above. Question number 5 is, which one of the following is not a feature of social movement? Collective action, degree of organization, disorganized, or objectives and ideologies. तो आंसर इज C, disorganized, क्योंकि जो सोशल मूवमेंट होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सोशल मूवमेंट? तो ये आपको डिस्क्राइब करके लिखना होगा, 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट्स। यहाँ आपको 2 टाइप के सोशल मूवमेंट्स लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
नेम वन डिफरेंस बिटवीन सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। यहाँ आपको एक डिफरेंस लिखना है सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ सोशल मूवमेंट डिपेंड्स ऑन अ गोल, एन ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रोग्राम, अ सेट ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे कोड दिए हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको कोड उसमें वो करने पड़ते हैं, है ना। तो या तो हमारे पूरे कोड 1 क्या है कि ABCD, यानी कि या तो जो 4 ऑप्शन है वो सभी ठीक है। 2 है A और D, यानी कि A या D ठीक है। 3 यानी कि ACD ठीक है, यानी कि A, और 4 ABC, यानी कि ABC तीनों ये ठीक है। लेकिन हमारा आंसर है ABCD, यानी कि चारों ही जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो आंसर इज 1। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। So students, it is your homework. Complete it and send it to me. Today's lecture is over now. Stay safe, stay home, be positive. Jai Hind, bye bye.